हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था, बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, क्या आम क्या खास, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना का टीका लगने के 15 दिन बाद ही अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए। विज ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। विज के संक्रमित होने पर भारत बायोटेक का बयान भी आया है। 28 दिनों में कोवैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं। दोनों डोज लेने के बाद ही कोवैक्सीन प्रभावी होती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभी एक ही डोज ली थी। विज ने 20 नवंबर को वैक्सीन की पहली डोज ली थी। वहीं वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी सफाई दी गई, जिसके मुताबिक 2 डोज के बाद ही वैक्सीन का असर दिखता है। अनिल विज को अभी एक ही डोज दी गई थी। तो वहीं पीजीआई रोहतक ने भी कहा कि पहले डोज के बाद 42 दिन तक संक्रमण का खतरा बना रहता है। अनिल विज के पॉजिटिव आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लाजमी है, लेकिन कोवैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है और विज के पॉजिटिव आने पर भारत सरकार और भारत बायोटेक दोनों का जवाब आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंदोलन खत्म होएगा। आज 11वां दिन है। कल सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक में भी बात नहीं बन पाई। अब 9 दिसंबर को केंद्र और किसानों के बीच फिर से बैठक होगी। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान अड़ गए हैं। सरकार ने हालांकि सुझाव मांगे हैं, संशोधन को भी सरकार तैयार नजर आ रही है। दिल्ली में किसान मोर्चे का आज 11वां दिन है। आपको बता दें कि कल भी सरकार के साथ जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया। सुलह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कल की बैठक में भी सुलह नहीं हो पाई। अब 9 दिसंबर को केंद्र और किसान संगठन के नुमाइंदे एक बार फिर से बैठक करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान संगठन अड़ गए हैं। तरीक ਨੂੰ एक बार फिर मीटिंग रख ली है और किस तरीके दे नाल मीटिंग अगली रहने वाली है। देखो, मैं ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮੀ ਨਾ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਧਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 8, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 9 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਾਊ ਵਾਪਸ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਜੱਜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਚਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕ ਬਦਲਿਆ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨमेंट ਰਲ के ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ सोच लांगे प्रपोजल। अब सीधे आपको ले चलते हैं टिकरी बॉर्डर, जहां से मेरे सहयोगी रोहित बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 तारीख तय की गई है, फिर से सरकार और किसान बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज किसानों की अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसको लेकर जानकारी फिलहाल। साथ में यह भी बताया कि किसान आंदोलन में कैसी हलचलें दिख रही हैं, बार बार बेनतीजा बातचीत हो रही है और किसान वहां डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, करीब 26-27 से ऐलान किया गया था कि हम दिल्ली में ही रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम वहीं पे बैठे रहेंगे। सो उसी प्रकार से आज धरने का करीब 11वां दिन है और लगातार जो मीटिंग का सिलसिला है वो भी चल रहा है। एक दिन छोड़ के एक मीटिंग हो रही है। और कल की जो मीटिंग थी, कल की मीटिंग में एक बार फिर केंद्र ने वही बात की कि हम आपको बताते हैं कि किसानों के लिए ये हमारे जो कानून है वो कैसे फ़ायदेमंद है। तो किसानों ने एक बात फाइनल कर दी कि हमारी जो किसानों के सामने फाइल रखी जाती है, जिस फाइल के अंदर ये बताया जाता है कि आज की मीटिंग किस बात पे होने वाली है, क्या क्या टॉपिक पे होने वाली है, उसके सामने उन्होंने लिख दिया यस और नो, आपकी हाँ है या ना है। और साफ तौर पे किसानों ने 1-1.5 घंटे के लिए मौन धारण कर लिया और किसान कुछ नहीं बोले। उसके बाद केंद्र ने बोला कि हम 7 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं। 7 के बाद मीटिंग को 8 को बोला गया, पर 8 को क्योंकि भारत बंद का ऐलान पहले कर चुके हैं तो इसीलिए मीटिंग को 9 तारीख के ऊपर बोल दिया गया। 9 तारीख को कहा जा रहा है कि मीटिंग निर्णायक हो सकती है क्योंकि बीच में 3-4 दिन का फासला। और किसानों ने भी बोला कि केंद्र अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करके हमको इसी बात का बताए कि आप बिल वापस लोगे या नहीं। और बड़ी बात कि किसानों ने बोला है कि मीटिंग में हमको प्रपोजल दिया जाए कि आपने अभी तक क्या डिसाइड किया है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। टिकरी बॉर्डर की इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि हरियाणा के एरिए से आए हुए ये किसान हैं और काफ़ी दिनों से हरियाणा के किसानों का भी पंजाब के किसानों को काफ़ी बड़ा योगदान मिल रहा है। कहाँ से आए हो? जींद। सर कहाँ से आए हो? जिला जींद, गांव रूपगढ़। आपकी यूनियन का नाम क्या है या कोई खाप से आए हो? भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह डिके ताड़ा पंथ, खाप कंडेला खाप माजरा खाप। हरियाणा की खाप ने एक डिसीजन लिया है कि जेजेपी को आप कैसे देख रहे हो? हरियाणा की खापें जेजेपी को कैसे देख रही है? हरियाणा की खाप जेजेपी को इब कड़वी नजर से देख रहे हैं। इब इनकी आगे किसी भी कार्य के लिए जाइयो, ये हरियाणा के किसी भी गांव में जाइयो, इनके जूतियां की माला गालांगे और मुंह पर जूते मारांगे, थप्पड़ की बजाय जूते मारांगे मुंह पर। रोहित मुझे पूछिए कि कितनी लंबी तैयारी के साथ आए हैं, सरकार के साथ बैठक के बाद बैठक हो रही है, क्या इतनी बैठकें होनी चाहिए या कोई निर्णायक अब फैसला हो जाना चाहिए? किसान क्या सोच रहे हैं? अगर मैं बात करूं केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग की, तो एक के बाद एक मीटिंग हो रही है पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि इतनी मीटिंग में कोई निर्णायक फैसला सामने आ जाना चाहिए था? निर्णायक फैसला अभी तक आ जाना चाहिए था। फिर जो किसान चाह रहे हैं इन काले कानूनों को बिल्कुल वापस करना, सरकार कह रही है कुछ संशोधन कर देंगे। संशोधन का मतलब नहीं है, काले कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए। कितने दिन का राशन पानी साथ लेकर चले हो और कितने दिन तक यहाँ रहने वाले हो? राशन तो अगली फसल तक, जब तक अगली फसल तैयार नहीं होती, गेहूं की कटाई, इतना राशन तैयार है। फिर कल आए जगह गांव में बतेरे राशन हमारे साथ आने लग रहे हैं। कितने किसान है हरियाणा के और कितनी खाप है जो यहाँ पे एक समर्थन में पहुंची हुई है? आधी जनता हरियाणा के गांव में काम कर रही है, आधी जनता बॉर्डर पे बैठी है। पंजाब बिल्कुल सारा ही निकल रहा है। कितने दिन का राशन पानी साथ लेकर चले? और मैं बात पूछ रहा था कि खाप कितनी है, कितनी खाप की गिनती है जो यहाँ पहुंची है? 40 खाप हैं हरियाणा में और राशन 6 महीने का राशन लेके चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा पहले बोल रहे थे कि हरियाणा के किसान बॉर्डरों पे नहीं जा रहे, पंजाब के किसान ही जा रहे हैं।
उड्डा नहीं बोल रहा था, खट्टर खट्टर खट्टर, सॉरी खट्टर बोला। बोल रहा था। खट्टर तो ज्ञान नहीं है। ये भाई भी हरियाणा से हैं। हरियाणा में कोई सरदार है नहीं। फतेहाबाद में है, अम्बाड़ा में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है। सरदार जो हमारे भाई हैं, ये पंजाब की भाई बैठक हैं। को लेकर भी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आज किसान संगठन के नेता अपनी बैठक करेंगे, उसमें रणनीति बनाएंगे कि 9 तारीख की बैठक में क्या करना है, आंदोलन को क्या रूपरेखा देनी है, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास। और साथ ही अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि जब जानकारी आप दे रहे हैं तो वहां टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचलें हैं, किस तरीके से वहां किसान डेरा जमा कर बैठे हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहें। जी 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 बिल्कुल, इस वक्त ही जो मैं आपको तस्वीरें साथ के साथ दिखला देता हूं। और किसानों की अगर मीटिंग की बात की जाए तो किसान आज जो मीटिंग करने जा रहे हैं, इस मीटिंग में एक को 7 तारीख को जो जिनको अवार्ड मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड मिला है, वो अपने अवार्ड वापस करने जा रहे हैं। बड़ी गिनती में पंजाब के लोग हैं और देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से लोग हैं जो अपने अवार्ड वापस करने जा रहे हैं। और 8 तारीख को पूरा भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की जानी है, क्योंकि किसानों ने बोला कि एक दिन के लिए पूरा भारत बंद रहेगा। और इसके अलावा जितने भी देश में टोल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टोल हैं, सभी टोल टैक्स को एक दिन के लिए फ्री कर दिया जाएगा। तो क्योंकि इस बंद को बड़े स्तर पे करना है, इस बंद को कामयाब करना है, इसलिए किसानों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं कि इस बंद को कैसे कामयाब करना है। और बड़ी बात, 9 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, 9 तारीख की बैठक किसानों ने बोल दिया है कि निर्णायक बैठक होने वाली है, क्योंकि हमने पहले ही केंद्र को बोल दिया कि आपको हमको बताना है कि आपने 4 दिन में क्या काम किया, आपने क्या डिसीजन लेने वाले हैं। अगर हमको लगता है कि आपका कोई पॉजिटिव रिस्पांस है तभी हम मीटिंग में आएंगे, अदरवाइज हम मीटिंग में नहीं आएंगे। तो इन पूरी बातों को लेकर चर्चा होगी, भारत बंद को लेकर चर्चा होगी, कौन कौन से खिलाड़ी या कौन कौन से लोग हैं जो अपना अवार्ड वापस करने जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार पर और दबाव बनाने के लिए जो पूरे आंदोलन की रूपरेखा है उसको किस प्रकार से तीखा किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। सो साफ तौर पे पूरे जो मोर्चे लगे हुए हैं, किसानों के जो मोर्चे लगे हुए हैं, उसको लेकर बातचीत की जाएगी कि इसका अगला रुख रहने वाला क्या है। किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि हम जो भी आंदोलन है वो शांति से करेंगे, पर इसमें जो गिनती है, इसमें जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी और केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और कुछ बॉर्डर जो अभी तक दिल्ली के सील नहीं किए गए हैं, उनको भी बहुत जल्द सील किया जाएगा। और दिल्ली में पूरी तरह से जो राशन पानी का सामान है वो जाना बंद कर देंगे। साफ तौर पे किसान संगठन इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि जो बॉर्डर अभी तक खुले हुए हैं उसको कैसे बंद करना है। शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर अन्नदाता के आंदोलन की महा कवरेज लगातार जारी है। एक तरफ जहां किसान संगठन साफ शब्दों में सरकार को बता चुके हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इससे कम उन्हें मंजूर नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार अब थोड़ा झुकी है। सरकार ने कहा कि संशोधन को वो तैयार है, आप सुझाव दें, अपनी बात रखें, लेकिन किसान एक बार फिर से कल की बैठक में कह चुके हैं कि हाँ या ना। उनका मतलब सीधा कि सरकार अब तीनों कृषि कानून या तो रद्द कर दे या अपना फैसला नामे बता सकती है, लेकिन वो तब तक यहां डटे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब 9 तारीख को एक बार फिर से सरकार के नुमाइंदे और किसान संगठनों के नुमाइंदे बैठक करेंगे। देखना यह होगा कि उस बैठक में क्या सुलह हो पाएगी, क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा।